Hello guys, how are you all? Welcome to my channel The Studious Kids. I am here again with a new video. As you can see on the screen, our today's video is about cost accounting, in which we are doing direct labor. In the previous video, we have already completed the two methods, time wage rate system and piece wage rate system. And in today's video, we will do Halsey plan, Rowan plan and Taylor's differential piece wage rate system. If you are a new viewer on the channel, please go and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. So let's move to the main video. Halsey plan. A worker is paid at an hourly rate for all the time during which he is working, irrespective of whether the task is completed or not. हालसे प्लान में वर्कर पर आवर पे किया जाता है, पर आवर रेट से पे किया जाएगा और ये वो आवर्स है कि जिसे उसने कंपनी के लिए डिवोट किया है या जिनमें उसने कंपनी के लिए काम किया है. इस मेथड में हम टास्क की कंप्लीशन को कंसिडर नहीं करेंगे. अगर कंप्लीट हुआ तो वेल एंड गुड, बट इफ नॉट देन इट्स ओके. इन हालसे प्लान द टाइम वेज रेट इज गारंटीड इवन इफ द आउटपुट ऑफ अ वर्कर इज बिलो द स्टैंडर्ड. जो आउटपुट है एक वर्कर का वो बिलो द स्टैंडर्ड रहा तब भी उसका जो टाइम वेज रेट है वो उसे गारंटीड मिल जाएगा. गारंटीड है और वो मिल ही जाएगा. बट फॉर एग्जाम्पल, if a worker completes his work in less than the standard time, he gets the wages for the hours work and also a certain extra part for the time saved. अगर एक वर्कर टाइम अलाउड से कम टाइम में अपना टास्क कंप्लीट करता है तो उसे अब उसका जो रेगुलर टाइम वेज रेट है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसने जो टाइम सेव किया है उस पर भी उसे थोड़ा सा प्रपोर्शन दिया जाएगा. यू कैन से he will get some part of bonus. So now let's see the formula. Formula is E is equals to TT into R plus 50 upon 100 into bracket TS into R, where E is equals to earning, T is equals to time taken, R is equals to rate per hour and TS is equals to time saved. इसमें और एक फॉर्मूला है हालसे प्रीमियम बोनस is equals to 1 upon 2 multiply by wages of time saved. इसमें और भी एक फॉर्मूला है कि जो है टोटल वेजेस की. टोटल वेजेस इज इक्वल्स टू वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन प्लस बोनस. द मेन फॉर्मूला है ई वाली, अर्निंग वाली. सो नाउ लेट्स सॉल्व फर्स्ट एग्जांपल सो यू विल गेट deeply understand that what is the formula is. Arjun has taken 15 hours to complete a task. For the task of which the time allowed is 20 hours and the rate per hour is ₹60. अर्जुन ने 15 आवर्स में टास्क कंप्लीट किया जिसके लिए टाइम अलाउड था 20 आवर्स और रेट पर आवर था 60. So simply put the formula, put the value and get the answer. E is equals to TT into R plus 15 upon 100 into bracket TS into R. यहाँ पे TS हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? TA माइनस TT में से, टाइम अलाउड में से हम टाइम टेकन डिडक्ट कर देंगे. सो टाइम अलाउड है 20 आवर्स माइनस 15 आवर्स टाइम टेकन इज इक्वल्स टू वी गेट टाइम सेव्ड इज इक्वल्स टू 5 आवर्स. पुट द वैल्यू इन द मेन फार्मूला. 15 into 60 plus 15 upon 100, 50 upon 100 into bracket 5 into 60. 15 upon 60 is equals to 900 और आप ये पूरा सॉल्व करेंगे 15 upon 100 वाला. सो यू विल गेट 150. 900 plus 150 will be 1050 and the total earning of Arjun is 1050. So it is very easy sum. You have to just put the formula, put the value and get the answer. Let us see the illustration number 2. Shyam is asked to do a task for which time allowed, or you can say allowed time, is 25 hours and rate per hour is ₹30. Shyam completed the work before 7 hours of allowed time. इस सम में हमें पर्टिकुलरली टाइम अलाउड दिया है, रेट पर आवर दिया है, लेकिन हमें टाइम टेकन नहीं दिया, हमें डायरेक्टली टाइम सेव्ड दिया है. तो उसमें कुछ चेंज नहीं, हम सीधी सीधी हमारी जो फॉर्मूला है टाइम सेव्ड की, टाइम सेव्ड इज इक्वल्स टू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, उसमें वैल्यूज़ डालेंगे
टाइम सेव्ड 7 है, तो 7 इज इक्वल्स टू 25 जो कि टाइम अलाउड है माइनस टाइम टेकन। टाइम टेकन को हम इज इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे ताकि वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए, और जो 7 है जो प्लस में उसे हम इस साइड लाएंगे ताकि वो माइनस हो जाए। सो इट बिकम्स टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 25 minus 7. So ultimately TT will be 18 hours. Put the value in the main formula. 18 into 30 plus 50 upon 100 into bracket 7 into 30. 18 into 30 का आपको मिलेगा 540, और जो बाकी का पोर्शन है वो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 105। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 645 की जो शाम की टोटल अर्निंग या यू कैन से टोटल वेज होगा। सो इट इज़ वेरी इजी प्लान और यू कैन से मेथड, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। सो नाउ लेट्स सी द रोवन प्लान। द सिस्टम इज ओरिजिनेटेड इन 1898 बाय जेम्स रोवन. It is very similar to Halsey plan in many aspects. It differs in the calculation of bonus. In this plan, the minimum wages is guaranteed in respect to time spent by the worker, and bonus to the worker are given on the basis of time saved by him. रोवन प्लान 1998 में ओरिजिनेट हुआ है जेम्स रोवन के द्वारा, और इसमें और हल्से प्लान में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं सिवाय एक के कि जो है बोनस के कैलकुलेशन की। इस सिस्टम में भी मिनिमम वेजेस वो गारंटीड ही है, लेकिन जो बोनस है वो टाइम सेव्ड के बेसिस पे काउंट होगा। हल्से प्लान में रैंडमली कुछ थोड़ा सा प्रपोर्शन था ताकि हमने 50 हो गया था, 33% हो गया, लेकिन रोवन प्लान में जो टाइम सेव्ड है उस पर से ही उसे बोनस मिलेगा। तो नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला। E is equals to T into R plus into bracket W into TS upon TA, where E is equals to earning, T is equals to time taken, R is equals to rate per hour, TS is equals to time saved, TA is equals to time allowed, and W is equals to wages for time taken, और उसकी W की फॉर्मूला है TT into R. Let's start. Now see the illustration number 3. The standard time for job is 15 hours. The hourly rate is rupees 30. A worker completes the job in 10 hours. Find the wages of the worker. हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम दे दिया है, टाइम अलाउड 15 आवर्स, अवर्ली रेट है 30 रुपीज़, और जो टाइम टेकन है वो है 10 रुपीज़. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड W. उसकी फॉर्मूला है टाइम टेकन इंटू आर, दैट इज 10 into 30. सो we will get our W is equals to 300. एंड टाइम सेव्ड की हमने पहले भी फॉर्मूला देखी, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इज equals to 15 minus 10 is equals to we will get 5 hours as time saved. Put these for values in the main formula. Time taken we have 10 hours, rate we have 30 rupees, plus W is 300 into time saved 5 upon time allowed. So 10 into 30 is equals to 300 plus 300 into 5 upon 15. You will solve this whole bracket and you will ultimately get 100. By adding both 300 and 100 you will get the final wages or final earning, and that is 400 rupees. ये दोनों मेथड में हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है और बाकी काम फॉर्मूला अपने आप करेगी. Get put the formula, put the values and get the answer. Let us see the illustration number 4. From the following information, there is a spelling mistake. From the following information, calculate the earnings of the worker. Time taken is given is equals to 12, time allowed is 20, and rate per hour is rupees 20. So put these values in the main formula. Before that, obtain time saved and wages. Time saved is equals to TT minus TA, that is 12 minus 20, and you can get 8 hours as time saved, whereas W is equals to time taken into R, that is 12 into 20, and you will also get W is equals to 240. Put these all the values in the main formula.
TT into R plus W into TS upon TA. 12 into 20 plus 240 multiplied by 8 upon 20. 12 इंटू 20 का आपको मिलेगा 240 और ये बाकी का पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके आपको मिलेगा 96. बाय एडिंग बोथ ऑफ दिस वैल्यूज यू विल गेट टोटल वेजेस एंड दैट इज 336. सो मैंने हर एक मेथड के दो सम लिए हैं ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर कर पाए. सो नाउ लेट्स सी द थर्ड प्लान, दैट इज टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. In this system, the management sites set standard target or task for employees who complete it gets high wage, and who fails to do so gets less wage. Simply saying, the worker who is efficient, it gets more benefit, and the worker who is comparatively less efficient get less benefit. For example, in a factory, worker is asked to make 18 shirts. Sorry, here shorts are printed, but it is shirts. And if he successfully made 18 or more than 18 shirts, he will get 25 rupees as wages per shirt. And if he fails to do so, he will paid by rupees 20. इस सिस्टम में मैनेजमेंट एक टास्क या स्टैंडर्ड टास्क सेट करेगा और जो एम्प्लॉयज़ इस स्टैंडर्ड टास्क को कंप्लीट करेंगे उन्हें एक थोड़ा सा बेनिफिट अमाउंट मिलेगा, और जो एम्प्लॉयज़ इसे सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाएंगे उन्हें जो कम अमाउंट मिलेगा. जो एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट हैं उन्हें ज़्यादा, और जो एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट नहीं है उन्हें कम वेजेस मिलेंगे. सपोज़ कि एक फैक्ट्री में मैनेजमेंट ने वर्कर्स को एक टास्क दिया है, दैट इज़ 18 शर्ट्स, और एक वर्कर है जिसने 19 शर्ट्स बनाए तो उसे 25 रुपीज़ से पे किया जाएगा, और एक वर्कर है कि जिसने 15 शर्ट्स बनाए तो उसे 20 रुपीज़ से पे किया जाएगा. सो ये है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. सो नाउ यू कैन गेट द नेम in your mind that what is differential piece wage rate. So this is the differential piece wage rate. Efficient worker will get more benefit, and less efficient worker will get less benefit, or you can say less wages. Let's see the one illustration. इसमें उसकी कोई proper formula नहीं है. You can directly obtain the answer. The standard task of a day is fixed at 25 units. If a worker produces 25 shirts or more in a day, he gets wages at rupees 30 per unit, 30 rupees per unit, and worker who fails to achieve it is paid at rupees 25 per unit. पर डे का जो 25 यूनिट्स हमने फिक्स किया है एक फैक्ट्री में, जो वर्कर इसे अचीव करेगा उसे 30 रुपीज़ मिलेंगे, और जो नहीं करेगा उसे 25 मिलेंगे. Manshuk produces 28 units and Vraj produces 20 units. Find out that what will be the total wages of both the employees. For Manshuk, as he succeeded in the completing the task, he will get per unit rupees 30. Manshuk ने जो स्टैंडर्ड टास्क है उससे ज़्यादा बनाए हैं तो उसे 30 रुपीज़ से पे किया जाएगा. तो टोटल wages will be, it is very simple, 28 into 30, he will be paid 840 rupees. And for Vraj, as he fails to achieve the standard task, he will get per unit rupees 25. व्रज ने जो स्टैंडर्ड टास्क है वो अचीव नहीं किया तो उसका जो पेमेंट है वो पर यूनिट 25 रुपीज़ से होगा. कैसे? तो 20 यूनिट्स इंटू डायरेक्टली 25, यू विल गेट 500 रुपीज़ एज द वेजेस. इस पर्टिकुलर मेथड में और इस पर्टिकुलर प्लान में कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं है. सीधी से एक फार्मूला है, टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर. जो वर्कर स्टैंडर्ड टास्क से ऊपर काम करेगा या स्टैंडर्ड टास्क को अचीव करेगा उसे थोड़े से ज़्यादा वेज में मिलेगा, 1 और 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, और जो नहीं कर पाएगा उसे 1 और 2 रुपीज़ कम मिलेंगे. सो ये ही मेन चीज़ है इस प्लान की. इस प्लान में मैंने सिर्फ एक ही इलस्ट्रेशन लिया है क्योंकि इट इज़ वेरी इजी दैट यू विल अंडरस्टैंड इन फर्स्ट इलस्ट्रेशन टू. But if we have time,
हम लोग एक बार फिर सभी पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे. सो नाउ यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो रही है, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू लेबर टर्नओवर रेट. लेबर टर्नओवर रेट के कुछ सम्स और मेथड्स हम देखेंगे, और उसमें 3 मेथड हम देखेंगे: सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स और जॉइंट मेथड. ये तीनों मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, और उसके बाद जो बाकी रही होगी शायद 1-2 मेथड वो देखेंगे, या फिर न्यू चैप्टर. सो यही कुछ था आज का वीडियो. आई होप दैट यू लाइक इट, और आपको अंडरस्टैंड हुआ कि तीनों जो फार्मूलाज है वो कैसे उनके वेजेस ऑब्टेन किए जाते हैं. एंड इफ़ यू understand the content, don't forget to like the video and subscribe the channel. Thank you.